Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our today's topic, one of the four language skills, that is the reading skill. Let's see what reading skill is and how we can improve. We'll go through the slides, and then if you have any questions, we would answer. Okay, reading skills. Reading skill refers to the ability to understand written text. When you are able to comprehend and understand written text, that is what we call the reading skill. It is advisable to develop the skill at early age of schooling. When students comprehend or understand written text and combine their understanding with prior knowledge, they're able to perform the following three reading comprehension skills. If you have the reading skills and you are able to understand written text, uh, so it means that you will be able to have these three comprehension skills. Number one, first one is that identify simple facts presented in the written text, which is also known as the literal comprehension. So literal comprehension means when you are able to understand and point out facts presented in the written text, which is not possible without comprehension or understanding of the text. The second one is that make judgments about the written text's content. When you try to evaluate the text, making your own judgments, that is also known as the evaluative comprehension. When you read in order to evaluate or make a judgment or give your own opinion about the text, that is what we call the evaluative comprehension. And the third one is connect the text to other written passages and situations. When you are able to understand, evaluate the text, and then connect the text to other written passages and situations. Inferences, inferential comprehension. Inferences, when you reach a conclusion based on certain facts presented in front of you, that is what we call inference. So inferential comprehension is that when you have text in front of you and you can connect the same to other written passages and situations based on the similarities or connection between the two texts. So that is what we call the inferential comprehension of the text. Acha, the development of these reading skills is vital to children's development, and a sheer volume of studies has demonstrated a link between competency in reading and overall attainment in school, that is literacy attainment or other outcomes. कहते हैं कि रीडिंग स्किल्स की जो डेवलपमेंट है वो एक बच्चे की पूरी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहते हैं कि काफ़ी स्टडीज ऐसी हुई हैं जिनसे ये पता चलता है कि एक लिंक है कि अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी है, आपकी रीडिंग स्किल्स स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, आप में वो रीडिंग स्किल्स हैं, तो आप ओवरऑल अपनी एकेडमिक्स में या दूसरे जो भी आपकी हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में जो भी चैलेंजेस होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, जो भी वो टेस्ट्स वगैरह में अपेयर होता है, थ्रू आउट इन द लाइफ वो जो है सक्सेसफुल रहता है, ही इज बेटर एज कंपेयर टू दोज कि जिनकी रीडिंग स्किल्स डेवलप नहीं होती. तो रीडिंग स्किल्स ना सिर्फ एक आपकी रीडिंग स्किल्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है, बल्कि एकेडमिकली और इवन इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, ये आपकी सक्सेस के हवाले से सिग्निफिकेंस रखती है. अच्छा, कि रिपोर्ट का भी यहाँ पे जिक्र है कि अकॉर्डिंग टू OCED's रिपोर्ट ऑन रीडिंग फॉर चेंज, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, PISA, reading for pleasure is more important for children's educational success than their family's socio-economic status. Reading, even pleasure reading जिसको हम कहते हैं, जो कि आप अपनी इंटरटेनमेंट के लिए रीडिंग करते हो, वो भी आपके बच्चे की एजुकेशनल सक्सेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के. तो आपके अगर आप अपनी सक्सेस चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, so you must be giving that importance to this reading skill. Besides, there are some other key benefits of engaging children in reading from the early age. This is so because the development of reading is a key to future success both in school and in life. कहते हैं कि early ages में, early stages में आप अपने बच्चे में, एक स्टूडेंट में ये स्किल्स डेवलप हो जानी चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट डिटर्मिन्स, जो कि डिटर्मिन करता है, तय करता है कि एक बच्चा सक्सेसफुल होगा या नहीं.
By supporting children to read in their leisure time at every age, आप जब अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं कि वो रीडिंग करे अपने फारिग वक्त में, लीजर टाइम में, तो पेरेंट्स कैन हेल्प टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर इक्विप्ड विद द नेसेसरी स्किल्स टू सक्सीड इन लेटर लाइफ। तो इससे पेरेंट्स जो हैं वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि लाइफ में सक्सेस के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसमें वो अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं। सिर्फ ये रीडिंग स्किल्स के हवाले से बात हो रही है कि ये एक ऐसी स्किल है जो कि आपकी सक्सेस को डिटरमिन करती है, ना सिर्फ आपकी एकेडमिक्स में बल्कि ओवरऑल आपकी लाइफ में। अच्छा, स्ट्रेटजीज हैं, देयर आर सर्टेन स्ट्रेटजीज फॉर रीडिंग, हाउ टू enhance or develop or polish your reading skills. The first one, finding enough time and energy, जिसके बगैर रीडिंग मुमकिन ही नहीं है। टाइम और एनर्जी का होना चाहिए। यू शुड बी डूइंग इट होल हार्टेडली, नॉट एज अ बर्डन या एक एज अ फोर्सफुली, नहीं कि आप पे कोई जबरदस्ती आपको कहे कि जी पढ़, नहीं। इफ यू वांट टू रीड यू शुड रीड, एंड यू शुड, a student should train himself that he himself without any external force should opt for reading. He should give time to reading. Then maintaining concentration while you are reading, you should be able to focus on the text, on the words, on the sentences that you are reading, and then also comprehend and understand the ideas behind those words. Then improving speed when you are reading, it will definitely, initially you might be having problems in your fluency, but with the passage of time, it will also help in improving your speed. Managing vocabulary, again, the more you read, the more you come across different words, and when you come across different words, and if you are a conscientious reader, agar aap a careful reader hain, so you will look for words, for the meanings of the words. That is how you start improving your own vocabulary. Selecting what to focus on in texts. आप में रीडिंग में विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ये भी आप में एक एबिलिटी आती है कि आपको पता चलता है कि एक टेक्स्ट में आपने किस चीज पे फोकस करना है, उस टेक्स्ट में वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा पोर्शन है जो कि सिग्निफिकेंट है और जिस पे आपने ज्यादा फोकस करना है। अंडरस्टैंडिंग न्यू थियोरेटिकल और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, वही चीज के जो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको समझना। आइडेंटिफाइंग मेन पॉइंट्स एंड आर्गुमेंट्स, अपनी रीडिंग्स में से जो की पॉइंट्स हैं, जो आर्गुमेंट्स हैं, जो मटेरियल पॉइंट्स हैं, उनको पॉइंट आउट करना। फिर इवेल्युएटिंग एविडेंस, जो भी एविडेंस है उसको इवेल्युएट करना, वेदर दे डू सपोर्ट द स्टांस, जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो और उसमें जो कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, कोई थीम है जिसको आप पढ़ रहे हो, जिसके बारे में आप रीडिंग कर रहे हो, नाउ द एविडेंस दैट इज देयर इन द टेक्स्ट, वेदर इट इज सपोर्टिंग the main idea or the theme of the writing or not. If you have the reading skills, you will be able to know and also to point out whether the text that you are reading, is it supporting the theme or the subject matter of the writing or not. आपकी जो मेन आइडिया है उस राइटिंग का, क्या उसको वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं। Identifying similarities and differences between texts, टेक्स्ट्स के दरमियान सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करना। रीडिंग टेक्स्ट्स दैट एज्यूम बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ऐसे टेक्स्ट्स पढ़ना कि जिनके लिए पहले का आपका प्री नॉलेज होना जरूरी हो और एक्सपीरियंस भी, तो वो भी आपकी आता है रीडिंग स्ट्रेटजीज में। और फिर रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, जिनमें केस स्टडीज भी शामिल होती हैं, रिपोर्ट्स भी होती हैं, लिटरेचर रिव्यूज भी होते हैं। मीनिंग देयर बाय कि रीडिंग स्किल, जो आजकल ज्यादातर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जी बस हम कोर्स या टेक्स्ट बुक्स पढ़ लेंगे तो इससे हमारी रीडिंग स्किल्स हो जाएगी, नहीं। रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स। जनरल रीडिंग होती है जिसमें एग्जांपल्स बहुत सी हो सकती हैं, केस स्टडीज, रिपोर्ट्स, लिटरेचर रिव्यूज, न्यूज़पेपर्स, बुक्स आउटसाइड योर कोर्सेज, all those things which could help you in improving and polishing your reading skills. अच्छा, इफेक्टिव रीडिंग है, कंसिडर व्हेन यू रीड, जब आप पढ़ते हो तो उस चीज पे जरा गौर करो, उसको जरा इंपॉर्टेंस दो, उसको समझने की कोशिश करो। ऑलवेज रीड इन अ वेल लिट एंड क्वाइट प्लेस दैट इज फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, एंड डोंट गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग यूनिवर्सिटी मटेरियल्स इन बेड अनलेस यू वांट टू गो टू स्लीप। वही बात कि सराउंडिंग्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसी जगह पे आपने पढ़ना है, जो कि रोशन हो, वेल लिट हो, जहाँ पे लाइटिंग आपकी प्रॉपर हो, खामोश जगह हो जहाँ पे डिस्टर्बेंसेस या डिस्ट्रैक्शंस ना हो, एक्सटर्नल ऐसी चीजें ना हो कि जो कि आपकी
फोकस को, आपकी कंसंट्रेशन को टेक्स्ट से दूर ले जाएं, ऐसी चीजें ना हो। एंड डोंट गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग यूनिवर्सिटी मटेरियल्स इन बेड। वही चीजें जो आजकल most of the students they do, they read through their cell phones or their tablets or their laptops, and they are lying in their beds. No, this thing won't help you. अच्छा, फिर don't vocalize as you read. आप बुलंद आवाज में या ऊंची आवाज में ना पढ़ें, दिस विल स्लो यू डाउन, ये आपकी स्पीड को कम करेगी, एंड इट वॉन्ट हेल्प कंसंट्रेशन, उसमें आपकी कंसंट्रेशन फिर नहीं बनती, एंड इट विल लीड टू बैड रीडिंग अप्रोचेस। ये आपकी रीडिंग हैबिट्स को जो है ना उसको अफेक्ट करता है, नेगेटिव इफेक्ट उस पर होता है जब आप तेज आवाज में पढ़ रहे हों। Read at times when you can concentrate and maintain concentration by taking regular short breaks, perhaps every 30 or 45 minutes. उस वक्त आप सिर्फ पढ़ें जब आप फोकस कर सकते हो, जब आपकी कंसंट्रेशन हो, मतलब ये कि जब आपका माइंड तैयार हो। जबरदस्ती रीडिंग नहीं हो सकती, या आपका माइंड कहीं और हो तो उसमें भी फिर रीडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि रीडिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप अल्फाज को पढ़ो, बल्कि उस हर एक सेंटेंस के पीछे जो आइडियाज हैं आपने उनको एक्सप्लोर करना है। तो दैट नीड्स कंसंट्रेशन। सो इफ यू फील लाइक you do not have the concentration or focus at the moment, you should not read. And और जब आप रीडिंग करो तो maintain concentration by taking regular short breaks, perhaps after 30-45 minutes, 30 या 45 मिनट्स के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो सकें और दोबारा आके अपनी रीडिंग रिज्यूम करें उसी कंसंट्रेशन के साथ। सेट योरसेल्फ रीडिंग टास्क्स, 10 पेजेस, 1 चैप्टर, 1 सेक्शन ऑफ अ चैप्टर एटसेट्रा। जब आप रीडिंग शुरू करो तो कहते हैं कि अपने लिए टास्क सेट करो, आप पहले से डिसाइड करो कि आपने कितना पढ़ना है, 10 पेजेस पढ़ने हैं, चैप्टर पढ़ना है या इससे कुछ कम। That depends on you, your ability and your stamina. Remember that reading often takes longer than you expect, and you often need to go beyond set texts. Give yourself enough time. कहते हैं कि ये बात अपने जहन में रखें कि रीडिंग अक्सर ज्यादा टाइम ले सकती है, और उसमें आपको जो टेक्स्ट आपके सामने हो सकता है कि आपको उसके अलावा भी दूसरा टेक्स्ट पढ़ना पड़े अगर आपको समझना है उस चीज को। तो जरूरी नहीं है कि एक ही रीडिंग आपको उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको मजीद टेक्स्ट्स भी कंसल्ट करना पड़े, इसलिए कहते हैं कि गिव योरसेल्फ एनफ टाइम, टाइम आप अपने लिए ज्यादा रखें। फिर कुछ रीडिंग स्ट्रेटजीज हैं। द फर्स्ट वन इज पर्पसफुल रीडिंग। Your reading should be purposeful. There should be a purpose of your reading. ऐसा नहीं है कि बस आप रीडिंग इसलिए करें क्योंकि आपने करनी है, नहीं, there should be a purpose. If you tend to begin reading like this, I need to read chapter 6, here it goes. You may need to rethink your approach. अगर आप कहते हैं कि अगर आप इस तरह पढ़ोगे जी मैंने चैप्टर 6 आज पढ़ना है और यहाँ से मैं शुरू हो गया, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, इस तरह आपने नहीं करना। स्पेसिफिकली यू विल नीड टू क्रिएट अ पर्पस फॉर रीडिंग, वही कि आपके पास पर्पस हो कि किस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, तो स्किल्स को डेवलप करने से पहले आपको आपका एक पर्पस होना चाहिए आपके माइंड में कि जी मैं किस मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ। बी वेरी क्लियर अबाउट एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, डोंट जस्ट रीड एमलेसली। वही चीज कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज के बारे में पढ़ रहे हो, बगैर किसी मकसद के ऐसी रीडिंग ना करें। Perhaps you look for answers to questions, general understanding of a topic or issue, detailed knowledge, a range of perspectives, identification of a writer's position, evaluation of a writer's position, arguments that support your position, arguments that oppose your position, examples, statistics, definitions, explanations and quotes. ये तमाम examples हैं उन चीजों की कि जिनकी वजह से आप पढ़ते हो। मतलब अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो या तो आप आंसर्स का क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, या जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हो, या जो भी ये एग्जांपल्स दी हुई हैं इनमें से कोई ना कोई आपका एक पर्पस होगा पढ़ने का। मतलब आपकी रीडिंग एमलेस नहीं होनी चाहिए, बगैर किसी मकसद के नहीं होनी चाहिए। ये पर्पसेस भी हैं, इनके अलावा आपके अपने कुछ भी पर्पसेस या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं रीडिंग के लिए। ट्राई टू हैव अ पर्पस इन राइटिंग नियर बाय, a purpose in writing nearby so you maintain focus. कहते हैं कि रीडिंग से पहले आप अपने पास अगर लिख लो तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप किस लिए रीडिंग कर रहे हो। तो जब आप लिख लोगे तो आपकी कंसंट्रेशन और आपका फोकस वो रहेगा उसी टेक्स्ट पे। पर्पस
Purposeful reading of this nature can help you read faster and more selectively. अगर आपके पास पहले से आपका ऑब्जेक्टिव या पर्पस या एम आपके पास मौजूद है और आपको पता है कि आप इस हवाले से पढ़ रहे हो या इस चीज के लिए पढ़ रहे हो, तो इससे आपको क्या फायदा होगा? दैट यू विल बी एबल टू रीड फास्टर एंड मोर सेलेक्टिवली. आपको अपना रिक्वायर्ड या डिजायर्ड मटेरियल ढूंढने में भी आसानी होगी और आप ज्यादा तेजी से पढ़ने के काबिल होगे. It can also help your concentration and your ability to remember. Concentration और याद करना, किसी चीज को मेमोराइज करना है, इसमें भी आपको हेल्प मिलती है अगर आप पर्पसफुल रीडिंग कर रहे हैं. सेकंड है स्कैनिंग. स्ट्रेटजी है रीडिंग की स्कैनिंग. स्कैनिंग इज रीडिंग क्विकली टू सर्च फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. जब आप एक खास इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हो और उसमें आप टेक्स्ट को जल्दी जल्दी पढ़ते हो अपनी उस खास पॉइंट को लोकेट करने के लिए, इसको हम कहते हैं स्कैनिंग. सपोज आपको 10-8 पेजेस दिए गए हैं और आप उन 10-8 पेजेस में अपना वो एक खास पर्पस ढूंढ रहे हो, अपनी एक खास चीज ढूंढ रहे हो. तो जब आप उन 10 पेजेस को सरसरी नजर डालते हो और उसमें अपना पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हो, उसको हम कहते हैं स्कैनिंग. यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ऑलरेडी गुड एट स्कैनिंग. आपको शायद कहते हैं पता ना हो लेकिन आप स्कैनिंग कर रहे हो. यू स्कैन फॉर एग्जांपल व्हेन चेकिंग अ टीवी गाइड और अ फोन बुक. जब आप एक टीवी गाइड या कोई फोन बुक उठाते हो उसमें भी आप अपनी ही चीज ढूंढते हो. स्कैनिंग में अलाउ यू टू रीड अप टू 1500 वर्ड्स अ मिनट. अब now this is something, this might sound some as strange कि 1500 words एक मिनट में हम पढ़ सकते हैं जब आप स्कैनिंग कर रहे हो. क्यों? क्योंकि you are trying to locate and point out and find your own topic or subject matter. One reason to scan an academic text that you have found while researching is to locate key terms as a means to assess the text's relevance. कहते हैं कि एकेडमिक टेक्स्ट को जब आप स्कैन करते हो तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आप की टर्म्स ढूंढ रहे हो जिससे आप उस टेक्स्ट की रेलेवेंस क्या है अंदाजा लगा सको. कि आप एक खास चीज को ढूंढ रहे हो और जब आप स्कैनिंग में उन टेक्स्ट्स को पढ़ते हो तो आप वो टर्म्स उसमें से ढूंढने की कोशिश करते हो जो कि रेलेवेंट हो उस चीज के साथ जिसको आप लोकेट कर रहे हो. स्किमिंग है. स्किमिंग इज रीडिंग क्विकली टू गेन अ जनरल आइडिया. जब आप एक क्विक रीड देते हो अपने टेक्स्ट को ताकि आपको सिर्फ एक आइडिया हो जाए, एक अंदाजा हो जाए कि ये टेक्स्ट या ये पैसेज या चैप्टर ये किस चीज के बारे में है, तो एक जनरल आइडिया हासिल करने के लिए जब आप रीडिंग करते हो उसको हम स्किमिंग कहते हैं. स्किमिंग के लिटरल मीनिंग्स हैं ये जो जब दूध पे एक बालाई सी क्रीम बन जाती है और उस क्रीम को जब आप हटाते हो उसको हम कहते हैं स्किमिंग. तो आप एक क्विक रीड देते हो टेक्स्ट को और उसमें आप लोकेट करते हो ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो सके उस टेक्स्ट का. स्किमिंग में अलाउ यू टू रीड अप टू 1000 वर्ड्स अ मिनट. स्किमिंग हेल्प्स यू आइडेंटिफाई वेदर और नॉट टू कंटिन्यू रीडिंग. अच्छा, स्किमिंग में आप कहते हैं कि आपको इस बात का भी पता चलता है कि आया आपने ये टेक्स्ट आगे पढ़ना है या नहीं. आपको अंदाजा हो जाता है. व्हाट टू रीड केयरफुली, आपको यह भी पता चलता है कि आपने कौन सा पैसेज, कौन सा पेज, कौन सा पैराग्राफ आपने एहतियात के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना है. एंड वेयर द बेस्ट प्लेस इज टू बिगिन, और कहां से आपने शुरू करना है. skimming an academic text immediately before you read it carefully can help you consider what you already know and can help you to develop a purpose for reading. अगर आप academic text की skimming करते हो, अगर एकेडमिक टेक्स्ट है, आपकी टेक्स्ट बुक्स है, अगर उसको डिटेल में पढ़ने से पहले आप उसकी स्किमिंग करो तो इससे आपको क्या हेल्प होता है कि आपको एक तो ये पता चल जाता है कि वो कौन सी चीजें जो कि आपको पहले से पता हो. आपको एक ये पता चल जाता है कि कौन सी चीजें हैं जो कि आपको पहले से पता है, और इससे फिर आपकी रीडिंग का भी एक पर्पस आपको पता चल जाता है कि किस लिए या किस वजह से मैंने अब ये टेक्स्ट पढ़ना है. एन इनिशियल स्किम कैन ऑल्सो हेल्प मैक्सिमाइज योर इंटरेस्ट इन द टेक्स्ट and your understanding and reflection on the material. अगर आप initially skimming करते हो तो क्या होता है कि एक तो आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ सकता है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है टेक्स्ट की वो, और फिर उस मटेरियल पे जो आपकी अपनी थिंकिंग है, रिफ्लेक्शन, जब आप रिफ्लेक्ट करते हो उसके बारे में सोचते हो तो उसको वो इंप्रूव करता है. तो स्किमिंग एक क्विक रीडिंग है जिसमें आप पॉइंट आउट करते हो कि आपने क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है,
और जनरल आइडिया उस टेक्स्ट के बारे में आपको मिलता है कि ओवरऑल ये टेक्स्ट है किस चीज के बारे में. As with scanning, skimming does not involve reading every word. Instead, you may skim. अच्छा, कहते हैं कि जिस तरह स्कैनिंग होती है तो स्कैनिंग में आप पढ़ते हो सारा, स्किमिंग में आप एक एक लफ्ज नहीं पढ़ते. आप स्किमिंग में क्या होता है कि आप क्या कौन कौन सी चीजें पढ़ते हो, आप टाइटल्स पे फोकस करते हो, सब हेडिंग्स पे, वर्ड्स दैट आर इन बोल्ड, इन इटैलिक्स और अंडरलाइन, जो टेक्स्ट बोल्ड है, इटैलिक्स में है, अंडरलाइन है, उसको आप पढ़ते हो. डायग्राम या फिगर्स अगर है टेक्स्ट में उस पे आप फोकस करते हो. रिपोर्ट्स एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन. एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हो, इंट्रोडक्शन पढ़ते हो या कंक्लूजन. द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, एवरी पैराग्राफ, पहला सेंटेंस जिससे आपको पैराग्राफ के बारे में अंदाजा होता है कि ये पैराग्राफ है किस चीज के बारे में, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं. पैराग्राफ में हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस वो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है और फिर उसमें सपोर्टिंग सेंटेंसेस होती है बाकी. तो फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ टॉपिक, इट गिव्स यू एन आइडिया of the first sentence of a paragraph, it gives you an idea as to what the paragraph is about, and that enables you to decide whether to read or not to read, whether to evaluate the significance of the paragraph as to whether it is important or central to the subject matter or theme or topic that you are looking for. So the first sentence of every paragraph, it gives you these, it helps you in these ways. Then chapter questions, chapter objectives, chapter summaries, ये आप skimming में जाते हो. फिर information है, information words. There will be times when you need to do more than skim a text in the way described above, but still need to read quickly. बाज़ औक़ात कहते हैं कि skimming से आपका काम नहीं होता, skimming से ज़्यादा आपने ज़रा डीप जाना होता है, लेकिन आपको जल्दी पढ़ना होता है. Now this may require ability to conduct surface reading, वो जो सरसरी reading होती है. It is worth remembering that no more than 50% of the words in an average textbook are information words. एक टेक्स्ट बुक में कहते हैं कि 50% से ज्यादा इंफॉर्मेशन वर्ड्स नहीं होते. मतलब अब 50% जो अल्फाज होते हैं एक टेक्स्ट बुक में वो ऐसे होते हैं कि जो कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं. द अदर वर्ड्स आर लाइक ग्लू एंड पेंट. बाकी जो अल्फाज हैं वो ग्लू और पेंट की तरह हैं जो कि सिर्फ उस पिक्चर को प्रेजेंट करने में, प्रॉपर पिक्चर को आपको प्रेजेंट करने में हेल्प करती हैं. They are there to provide connections and add interest, but are not essential for meaning. वो connections और interest के लिए होती हैं, लेकिन they are not essential for reading. If you concentrate on information words, you can read faster and with better comprehension. अब ये आपको decide करना है कि वो information words कौन सी होती हैं, क्योंकि टॉपिक आपके जहन में होता है, एम आपका अपना होता है, ऑब्जेक्टिव्स आपकी जहन में होती हैं. तो it is you who will decide what words, what ideas are important or integral or central, and which word you should read. Which word is a word of meaning for you, a word of information for you, and which word is not. तो ये आपको decide करना होता है. But how do you learn to pick out the important information words? A large part of the trick involves paying attention to what the author is trying to say. इसका कहते हैं कि अब इस चीज को डिसाइड करना कि इंफॉर्मेशन वर्ड्स क्या है, कौन कौन से हैं, उसका एक ट्रिक ये है कि आप इस चीज पे फोकस करो कि ऑथर, ये जो राइटर है, ये कहना क्या चाह रहा है. लुक फॉर द मैसेज एंड द इंफॉर्मेशन वर्ड्स विल इमर्ज नेचुरली. अगर आप इस चीज पे फोकस करो कि ये राइटर कहना क्या चाह रहा है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि आपको इंफॉर्मेशन वर्ड्स लोकेट करने में आसानी होती है. अच्छा, फ्रेज रीडिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है. Watch the eyes of a friend or a member of your family while he or she is reading. You'll see that they move along each line of print in a series of jerks. वो जो एक jerk सी होती है, कभी आपके आई बॉल्स एक तरफ जाते हैं, कभी दूसरी तरफ, कभी तीसरी, तो एक लाइन में वो मूव करते हैं रैंडमली. क्यों? The pauses between the jerks are known as fixations. ये जो आप नजर एक लफ्ज से दूसरे से तीसरे एक लाइन में दौड़ाते हो और एक लफ्ज पे फोकस करते हो, फिर वहां से नजर हटा के दूसरे वर्ड, फिर तीसरे, जब आप नजर फिक्स करते हो, उस फिक्स करने को फिक्सेशंस कहते हैं. कहते हैं कि इट इज ड्यूरिंग द फिक्सेशन दैट योर आईज टेक इन वर्ड्स. ये जब आप आईज फिक्स करते हो एक जगह पे, तो यही वक्त होता है कि जब आपके आईज उन वर्ड्स को कैच करती हैं. Poor readers
जो कि जिनकी रीडिंग स्किल्स डेवलप नहीं हुई होती, वो कहते हैं कि दे टेक इन ओनली 1 or 2 वर्ड्स इन ईच फिक्सेशन। अगर वो ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो वो इसको इस तरह पढ़ेंगे। ये जो लाइंस बीच में आप देख रहे हैं, ये एक एक लफ्ज पे इनकी जो गेज है या जो नजर है वो फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हाउ पुअर रीडर्स आईज मूव अलोंग लाइंस ऑफ प्रिंट। ये पॉजेज जो आप देख रहे हो, ये आपके नजर की पॉजेज हैं। मतलब आपकी पहली नजर दिस इज पे पड़ेगी, फिर हाउ अ पुअर रीडर, इसी तरह आपकी ये जो है ये मूव करोगे, आपकी रीडिंग जाती है। कहते हैं कि अ गुड रीडर ऑन द अदर हैंड टेक्स इन सेवरल वर्ड्स इन ईच फिक्सेशन। जो जिसकी रीडिंग स्किल्स डेवलप हुई होती हैं, तो वो एक फिक्सेशन में जब एक नजर वो फिक्स करता है तो वो एक नहीं बल्कि 2-3 अल्फाज वो पढ़ लेता है। और वो ये डिफरेंस है, यही सेंटेंस है। लेकिन जब एक गुड रीडर पढ़ता है तो वो इस तरह पढ़ता है कि दिस इज हाउ अ बेटर रीडर्स आईज मूव अलोंग लाइंस ऑफ प्रिंट। तो वो 2-2, 3-3 अल्फाज को पढ़ता है साथ में। इसको कहते हैं फ्रेज रीडिंग। Now read the 2 sentences below, focusing only on the underlined words. ये sentences हम पढ़ते हैं और इन underlined words पे जरा ज्यादा focus करते हैं. Today it is more important that ever to be able to read fluently. For example, if you are a car driver, you have to be able to read a great many road signs. अच्छा, today important read मतलब कि आज के दौर में रीडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। मिसाल क्या है, एग्जाम्पल क्या है कि कार ड्राइवर है, वो रीड करता है क्या, रोड साइंस। तो मतलब अगर रीडिंग है तो कार ड्राइवर इस काबिल होगा कि वो रीड करेगा रोड साइंस को। ये 2 सेंटेंस अगर आप पढ़ो, टुडे इंपॉर्टेंट रीड, टुडे मतलब इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड। ओके, एग्जाम्पल क्या है कि कार ड्राइवर रीड रोड साइंस। अगर कार ड्राइवर की रीडिंग एबिलिटी है तो वो इस काबिल होगा कि वो रोड साइंस को पढ़ सके। तो ये आपको बता रहा है कि इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस बता रहा है आपको रीडिंग की, कि अगर आपकी रीडिंग स्किल्स हैं तो वो किस तरीके से ना सिर्फ आपकी एकेडमिक्स में बल्कि आपकी ओवरऑल लाइफ में आपको हेल्प करती हैं। तो व्हाट आर द 2 sentences मेनली अबाउट, रीडिंग, राइटिंग, ट्रैवलिंग। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो 2 sentences हैं किस चीज के बारे में है, ट्रैवलिंग के बारे में है, राइटिंग के बारे में है, या रीडिंग के बारे में है। डेफिनेटली दीज आर अबाउट रीडिंग। नाउ व्हिच वर्ड्स कंप्लीट द फर्स्ट सेंटेंस, टू रीड स्लोली, फास्ट, फ्लुएंटली। टू रीड क्या, फ्लुएंटली, ठीक। फिर विच एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग इज मेंशन्ड इन द सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस जो है ये वाला एग्जाम्पल जिसमें दी गई है, कहते हैं उसमें कौन से रीडिंग के बारे में कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, रोड साइंस हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं। तो वो रोड साइंस के बारे में है। नाउ नाउन्स एंड वर्ब्स आर द की वर्ड्स यू नीड टू फोकस ऑन। नाउन्स और वर्ब्स पे अगर आप फोकस करते हो तो ये आपका की पॉइंट है। 6 जो है वो एनालिटिकल रीडिंग है। एनालिटिकल रीडिंग or study reading is needed when you want to make sure that you fully grasp and appreciate what you are reading. जब आप मुकम्मल तौर पे समझना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो आप एनालिटिकल रीडिंग करते हो। You may have to read statements more than once, stop to think about them, or jot down keywords while using this style. जब आप एनालिटिकल रीडिंग करते हो तो उसमें हो सकता है कि आपको एक सेंटेंस एक से ज्यादा मर्तबा पढ़ना पड़े, आपको रुकना पड़े उसके बारे में सोचने के लिए, और हो सकता है कि आप नोट्स या की पॉइंट्स भी अपने साथ जॉट डाउन मतलब नोट कर लो, राइट डाउन, आप उसमें नोट करते हो। एज अ रिजल्ट योर रीडिंग रेट कैन इजीली ड्रॉप टू बिलो 100 वर्ड्स अ मिनट। अगर आप एनालिटिकल रीडिंग करते हो तो उसमें फिर चूंकि आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और कंप्रीहेंशन के लिए करते हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो कम होके इवन 100 वर्ड्स तक आ जाए, कि आप 1 मिनट में फिर 100 वर्ड भी पढ़ो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका जो पर्पस है वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। अच्छा, मार्किंग द टेक्स्ट। इफ द टेक्स्ट यू आर रीडिंग इज योर ओन कॉपी, अगर आपके पास अपनी बुक है, अपनी एक कॉपी है, यू कुड आल्सो अंडरलाइन कीवर्ड्स, हाईलाइट विद अ मार्कर और मेक नोट्स इन मार्जिन्स, or alternatively if you don't own the text you could use little post-it labels. अगर आपकी अपनी बुक से तो आप बुक में पॉइंट आउट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, जिस तरह नॉर्मली स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक्स को करते हैं, बुक पे लिखते हैं, मीनिंग्स अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, या बुक के साइड पे जो खाली जगह होती है, साइड पेज के साइड पे या नीचे या टॉप पे जो स्पेस होती है, वहां पे फिर आप नोट्स लेते हो। This process of marking texts can help you concentrate and keep reading
इस मार्किंग से क्या होता है कि आपकी कंसंट्रेशन भी होती है और आप रीडिंग जारी रखते हो, एंड कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई की पॉइंट्स एंड मेक द बुक इजियर टू सर्वे लेटर व्हेन यू नीड टू यूज इट अगेन फॉर योर असाइनमेंट और टू रिवाइज फॉर एन एग्जाम। कहते हैं कि इससे आपको क्या होता है कि आपको अगर आप बुक अंडरलाइन करते हो, हाईलाइट करते हो या उस पर लिखते हो, तो आपको अपने की पॉइंट्स आ जाते हैं, और अगर आप दोबारा वो बाद में फिर कभी वो बुक उठाते हो तो आपको उसमें अपने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो की पॉइंट्स हैं, वो लोकेट करने में आपको आसानी होती है। तो आपकी रिवीजन भी उसमें आसानी से हो सकती है और आप की पॉइंट्स उसमें आसानी से ढूंढ सकते हो। नोट टेकिंग है, इफ यू डोंट टेक नोट्स वेल और डोंट टेक देम एट ऑल, नाउ इज द टाइम टू डेवलप दिस एसेंशियल स्किल। नोट टेकिंग इज इंपॉर्टेंट स्किल। अगर आप कहते हैं कि अगर आपने अभी तक नोट्स टेकिंग की एबिलिटी को डेवलप नहीं किया या आप सिरे से लेते ही नहीं हो, तो अभी वो टाइम है कि यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर नोट टेकिंग स्किल राइट नाउ, फ्रॉम राइट नाउ। नोट टेकिंग कैन हेल्प यू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्शन। अंडरस्टैंडिंग और फिर रिफ्लेक्शन में आपको ये हेल्प करती है। अ बेटर एबिलिटी टू रिमेंबर एंड गुड एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल फॉर लेटर। नोट टेकिंग क्या होता है कि एक तो आपकी जो याद करने की एबिलिटी है वो इससे इंप्रूव होती है, और जब आप एग्जाम के दिनों में जब आप दोबारा पढ़ते हो तो वो नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। व्हेन टेकिंग नोट्स, कीप इन माइंड द फॉलोइंग 7 प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं आपको, ये कहते हैं कि अपने जहन में अपने पास रखें।